Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasin, your teacher for CSC322 Operating Systems Concepts. Dear students, we are studying I/O management, a very important component of the operating system, and we are discussing the principles of I/O hardware. The topic that I was discussing in the last lecture, I passed through it a bit quickly, so I've decided to repeat it for your convenience. So let's quickly revise that last topic that we discussed, and then I'll start the next lesson. Okay, we were talking about the PC interrupt structure. Okay, interrupt structures, I informed you and I explained it to you that in the first lecture that all the I/O devices could directly be connected to the system bus. This is a system bus. But if we install the interrupt controller, then instead the devices are connected directly to the system bus and interrupting directly to the CPU, they can be connected with the interrupt controller. Then interrupt controller is an intelligent controller that maintains the record that which device has sent the interrupt, which device has asserted a signal, meaning that requires the attention of the CPU. So the connection between the devices and the interrupt controller use interrupt lines, the bus rather than the dedicated wires. Okay, so these are also the different buses through which they are connected with the interrupt controller, and they assert the signal to this interrupt controller. What this interrupt controller do, it just carries out certain intelligent tasks that identifying the which device has requested the attention of the CPU, then what type of service the device has requested, what kind of information of the service routine can be provided to the CPU, means that it has the information regarding the interrupt service mechanism. So it calculates that the interrupt number and the priority is also known to this interrupt controller, and put that information while interrupting the CPU. CPU once get the interrupt along with the information, then just required to attend that, means जो interrupt service routine की detail provide की है interrupt controller ने, based upon that information provide the service. So let's go slightly in detail that each device asserts a signal on a bus assigned until attended by the interrupt controller. क्या मतलब कि वो सिग्नल को assert करने के बाद बार बार उसको repeat करता रहेगा unless until the interrupt controller or eventually the CPU's attention is attained. Then the controller detects and distinguishes the interrupt signal by the device. देखता है कि कौन सी device से interrupt signal जो है वो receive हुआ है. If no other interrupt is pending, it immediately responds that. What does it mean? It means that each device has been assigned a certain priority, और उसकी priority की basis के ऊपर it takes, if the interrupt controller is available and doing nothing and no other interrupt is pending, then obviously whosoever is the device sending the interrupt gets the response very quickly. Otherwise, it has got the two options: either put that interrupt into the queue or take the higher priority interrupt into service, or what it can do, it can simply ignore that. So the controller puts number on address line telling CPU which device wants the attention. सबसे पहले तो ये device को identify करती है, and then the interrupt vector table, it points the interrupt service के कौन सी सर्विस चाहिए, रीडिंग की सर्विस चाहिए, राइटिंग की सर्विस चाहिए, या
कोई मैसेज पास ऑन करना है, आपने डिवाइस को आपने ऑन या ऑफ करने की इंफॉर्मेशन है, बट यूजुअली दिस टाइप ऑफ सर्विस इज कैरिड आउट बाय द कंट्रोलर itself. So whatever the CPU has to do with the IO devices is usually either the input or the output. So it precisely point out the address of the particular service that is required to be invoked and initiated so that that interrupt service जो है could provide the service to the that particular device. Okay. Number on address line acts as an index to the interrupt वेक्टर. तो वो जो इंफॉर्मेशन है इंटरप्ट नंबर है और इस इंटरप्ट नंबर के बाद रीड या राइट की इंफॉर्मेशन है, उसकी बेसिस के ऊपर प्रिसाइजली जो एड्रेस है दैट बिकम्स द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन. So interrupt vector contains the program count. PC means program counter, which points to the start of the service routine. Means कि जब वो interrupt service routine को address करते हैं तो obviously it is the entry point or the address of the first instruction of the interrupt service routine to be executed, or address of the first instruction which needs to be the execution is pointed out by the program counter. Then interrupt processing, we have been discussing it in detail, but here we will be talking about some other aspects. Once the interrupt service routine acknowledge the interrupt, okay, means ke says that okay I am available, or acknowledge means sends the signal that the attention has been achieved of the CPU. It saves the information of the interrupted program. Obviously the CPU जो है must have been doing something else. So whatever the program is being executed by the CPU, that information requires to be saved. Now the big question is where to save the information. उस इंफॉर्मेशन को हम ऐसी जगह पर सेव करना चाहते हैं जहां से कि हम उसको कन्वीनियंटली रिट्रीव कर सकें और हमारे पास कोई एडिशनल ओवरहेड भी ना हो. देयर आर टू ऑप्शंस. आइदर वी सेव इट इनटू द यूजर स्पेस, मींस जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसी प्रोसेस के एड्रेस स्पेस के अंदर उसको सेव किया जाए. उसके लिए उसका जो प्रोसेस का जो स्टैक है ओके उसको यूज किया जाए, और दैट स्टैक जो है मस्ट हैव बीन पॉइंटिंग आउट टू द स्टैक पॉइंटर जो है मस्ट हैव बीन पॉइंटिंग आउट टू द स्टैक एरिया. तो एक तो ऑप्शन ये है कि जनाब आप उस यूजर प्रोसेस के स्टैक को यूज करते हुए उसके स्टैक पॉइंटर को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को सेव करें, बिकॉज इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. And the second option is we use the kernel stack. Both have some difficulties, some problems. And what are those problems? First of all, let's talk about the user process stack. User process stack में क्या difficulty हो सकती है कि the stack pointer user might not be intelligent enough, or might have been using accidentally or unintentionally using the stack pointer for passing out certain other information. So the stack pointer might have not the exact address of the stack created in the user process. So it could be a garbage, or it could be the address which is not the exact address of that particular stack. So what will happen if you just put it over there? It will crash the process, और ये सारे का सारा आपका system जो है will be crashed. The second possibility is that के stack pointer जो है that if might be pointing out to certain area that is at the boundary of the page. या तो पेज की बाउंड्री के ऊपर, या अगर सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं तो इट कुड बी एट द बाउंड्री ऑफ द सेगमेंट. तो देयर इज ए चांस के आपका पेज फॉल्ट अकर हो जाए या सेगमेंट फॉल्ट अकर हो जाए. सो व्हाट विल हैपन कि आपका एक फॉल्ट अकर हुआ है, इंटरप्ट अकर हुआ है. इंटरप्ट जो है वो जब पेज फॉल्ट होगा तो दैट विल कॉज अनदर इंटरप्ट, मींस इंटरप्ट कॉजिंग इंटरप्ट. सो दैट इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल. अभी तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब इंटरप्ट अकर हो तो इंफॉर्मेशन को कहाँ सेव करें. चेंज आए कि वी आर नाउ इन ए सिचुएशन वेयर एक इंटरप्ट का डेटा अभी सेव करने जा रहे थे तो एक और इंटरप्ट अकर हो गया.
है ना एक complicated situation. So that is related if you are trying to save that in the user space. But instead if we want to save it into the kernel stack, तो kernel stack तो क्योंकि being controlled by the visor part of the software, which is the operating system or which is the kernel itself, so you have a legal stack pointer. But jumping to the kernel area, jumping into the system area, you know that कि एक trap occur होता है जहाँ से कि user से आप kernel space के अंदर jump in करते हैं. जब आप kernel space के अंदर jump in करते हैं तो whatever information is available कहाँ पर MMU, Memory Management Unit में, और Memory Management Unit में precisely कौन सा area? TLB, okay, the look-aside buffer, okay, translation look-aside buffer TLB जो है required to be flushed, क्योंकि TLB तो एक immediate environment से related होता है ना. अब अगर आपने environment change कर दी तो whatever is there in the TLB you will have to flush that, क्योंकि वो अब आपके interrupt service routine से related नहीं है. Similarly जो कैश कौन सी अब मैं बात कर रहा हूँ? The area within the storage area, the buffered area within the CPU, वो कैश भी रेलिवेंट हो जाएगी क्योंकि वो तो उस प्रोसेस की कैश थी जो कि लास्ट एग्जीक्यूट हो रहा था. तो अब आपको उसको सेव भी करना है या आपने उसको फ्लश करना है और उसके बाद उसको आपने रीलोड करना है when that process will resume. So that is again a time consuming job. So हमने कहा था ना इंटरप्ट जो है और बेसिकली एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है. रियल लाइफ में भी अगर आप देखें if you are doing some serious job और आपका एक इंटरप्ट अकर होता है, कैसे इंटरप्ट होता है? कॉल बेल बज जाती है या टेलीफोन की बेल बजती है while you are studying and while you are concentrating to one particular task. So what you are required to do, whatever you are doing, अगर आप एक रीडिंग कर रहे हैं तो जिस पेज के ऊपर आपने रीडिंग कर रहे हैं आपको उस पेज के ऊपर निशान लगाना होता है, किताब को बंद करना होता है, प्रॉपर जगह के ऊपर किताब को आप रखते हैं कि अटेंशनली वो माइट नॉट बी एक्सपोज टू द चिल्ड्रन और कोई परेशानी ना हो जाए. सो यही सारी सिचुएशन जो है वो इंटरप्ट की सीपीयू के और सिस्टम के हवाले से भी है कि इट इज एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. सो देन वेयर टू सेव द इंफॉर्मेशन? देयर आर टू अगेन ऑप्शंस जो हमने बात की कि इंटरप्ट करते हुए जो आपकी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही हैं क्या हम उसको सेव कर सकते हैं. सो उसके जवाब में भी देयर आर टू ऑप्शंस. एक है द प्रिसाइज इंटरप्ट, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन कि आपका जो इंटरप्ट है वो एक बड़ा प्रिसाइज हैंडलिंग हुई है. प्रिसाइज हैंडलिंग का क्या मतलब है कि आपका एक पीसी जो है वो सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है. सीपीयू जो है सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर प्रिसाइजली पता होता है कि विच इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, और विच इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इज पॉइंटेड आउट बाय द प्रोग्राम काउंटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम काउंटर बता रहा होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन आपने कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, तो आपने उसको प्रोग्राम काउंटर को सेव करना होता है. और दैट प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. सो ऑल द इंस्ट्रक्शन अप टू दैट पॉइंट मीन्स जहां पे प्रोग्राम काउंटर से पहले तक जो है वो पॉइंटेड आउट बाय द पीसी हैव फुली एग्जीक्यूटेड, यानी कि प्रोग्राम काउंटर जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है उससे पहले की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं आर फुली एग्जीक्यूटेड. द इंस्ट्रक्शन अप टू दैट प्रोग्राम काउंटर्स आर प्रिसाइजली नोन कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई हैं, एंड जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम काउंटर से शुरू होकर अगली इंस्ट्रक्शंस हैं, दोज इंस्ट्रक्शंस हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज एन आइडियल सिनेरियो जो उसको कि आप बड़ी प्रिसाइजली सेव कर सकते हैं. सो एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटेड टू बाय द प्रोग्राम काउंटर इज नोन, और ये कहलाता है कि द प्रिसाइज इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर. इम्प्रिसाइज इंटरप्ट्स, imprecise interrupts भी होते हैं क्या? Yes. Can we save the program counter and PSW? PSW क्या होता है भाई? Do you remember that?
process status word. It is a register that contains some hardware information. बड़ी important information होती है जो उस particular process के साथ होती है. Program counter और PSW तो normally hardware ही save कर देता है, and we can save that. लेकिन क्या हम उसको accurately save कर सकते हैं? Consider a situation where you are using the pipeline processing या super scaling. अब आप पूछेंगे पाइपलाइन प्रोसेसिंग या सुपर स्केलिंग क्या है? याद है आपको, हमने प्रोसेस मैनेजमेंट में पाइपलाइन प्रोसेसिंग की भी बात की थी और सुपर स्केलिंग की भी बात की थी. क्विकली, पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है कि अगर एक इंस्ट्रक्शंस आपकी 5 मशीन साइकिल्स की इंस्ट्रक्शन है, तो ये नहीं होता कि 5 मशीन साइकिल के बाद नई इंस्ट्रक्शन लोड हो जाए. वो याद है आपको सारे स्टेप्स जो है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है ना? तो क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है दूसरी इंस्ट्रक्शन को पुश कर रही होती है फॉर द एग्जीक्यूशन, और इस आर्किटेक्ट को हम कहते हैं पाइपलाइन आर्किटेक्चर. ठीक है, ताकि आप जो पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के अंदर साइमल्टेनियसली लोड हो रही होती है, तो लिहाजा एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन नहीं लोड हो रही होती, बल्कि आपके पास सीपीयू के अंदर जो है, जो उसके रजिस्टर्स होते हैं, उसमें डिपेंडिंग के आपका कितने मशीन साइकिल की इंस्ट्रक्शंस है, पाइपलाइन में 1 2 3 4 5 जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी हो सकती है. सुपर स्केलर क्या है? सुपर स्केलर में तो बिल्कुल ही पैरेलल प्रोसेसिंग है, और उसके अंदर एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि इंस्ट्रक्शंस आर डिकम्पोज एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर. याद है ना ये टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था? जरूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हो. ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ा था. अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या जो क्वेश्चन है कि कैन वी सेव द प्रोग्राम काउंटर इन PSW, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसके लिए फिर आपको यू रिक्वायर सम स्पेशल मैकेनिज्म. सो दिस इज एन एग्जांपल. इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ए जो है इज शोइंग बेसिकली जी यहां से यहां तक ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं. अगर आप देखें फुली एग्जीक्यूटेड, यहां से प्रोग्राम काउंटर इज मूविंग अप, तो इंस्ट्रक्शंस आर फुली एग्जीक्यूटेड. दिस इज द प्रिसाइज लोकेशन, और ये जो प्रिसाइज लोकेशन बता रही है कि जनाब यहां से ऑनवर्ड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है. तो दिस इज अ सिनेरियो वेयर यू कैन प्रिसाइजली सेव द स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रिसाइज इंटरप्ट. ये है आपका इम्प्रिसाइज इंटरप्ट. इसके अंदर सिचुएशन क्या है कि अगर तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग है, तो जो सबसे टॉप पे होगी वो माइट बी एग्जीक्यूटेड 80%, उससे पीछे 60%, एक वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन की परसेंटेज ऑफ एग्जीक्यूशन आएगी. लेकिन अगर ये सुपर स्केलर है, देन द इंस्ट्रक्शन माइट बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर. तो आप देखें कि ये इंस्ट्रक्शन तो अभी सिर्फ 20% एग्जीक्यूट हुई है, और प्रोग्राम काउंटर यहीं से जा रहा भी ऊपर. देखेंगे यहां से आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम काउंटर ऊपर मूव कर रहा है. ठीक है ना? तो इस इंस्ट्रक्शन को ज्यादा एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन इससे ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन 316 और 320 जो है वो 35 और 40% एग्जीक्यूट हो गई. तो ये सिनेरियो कौन सा है? ये सिनेरियो है सुपर स्केलर का सिनेरियो. सो इफ दिस इज द सिचुएशन, देन दिस इज कॉल्ड एन इम्प्रिसाइज इंटरप्ट. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सेव ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन अब सेव नहीं करनी है. अब आपने जितनी इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू के अंदर आ गई हैं, ना सिर्फ ये कि सारी इंस्ट्रक्शन सेव करनी है, बट यू आर रिक्वायर्ड के हर इंस्ट्रक्शन का प्रिसाइज स्टेटस भी सेव किया जाए, एंड दैट इज रियली अ चैलेंजिंग जॉब. सो वी do that with the help of great difficulty. Either we use a complicated hardware, जैसा कि Pentium यूज करता है, logic to restart after the interrupt. So either you have to now provide a complicated hardware, so that will cost you in terms of the hardware and in terms of money, or you have to have a very complicated processing in operating system. या तो अब भाई सॉफ्टवेयर ने इसको सॉल्व करना है या हार्डवेयर ने सॉल्व करना है, दोनों सूरतों में you have to pay the price also.
ओके तो जहां हम एडवांटेज लेते हैं सुपर स्केलिंग का, पाइपलाइन प्रोसेसिंग का, और हम स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं, वहां पर इंटरप्ट को हैंडलिंग के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑर्डर टू सेव द करंट प्रोसेस, सो डैट कि जब वो प्रोसेस रिज्यूम करे शुड स्टार्ट नॉट ओनली स्टार्ट प्रिसाइजली फ्रॉम दैट पॉइंट, और बल्कि एक्यूरेटली, अगर वो प्रिसाइजली स्टार्ट नहीं करेगा तो एक्यूरेटली स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब वो कैसे करता है, हम इसको कंसिडर इस लेसन के अंदर, इस कोर्स के अंदर हम इसको इससे ज्यादा फर्दर डिटेल में हम नहीं जाते, बस हम ये अज्यूम करते हैं कि इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर चाहिए होगा, ठीक है। अगर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और जिसमें या हम आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अगर कोर्स पढ़े, तो उसमें फिर ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि वो उसको कैसे हैंडल करता है और कैसे सेव करता है, ठीक है भाई। सो स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक था जो कि मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है लास्ट लेसन में कराया था, और आज मैंने उसको जरा डिटेल के साथ दोबारा रिपीट किया है फॉर योर कन्वीनियंस, और ताकि आपको परेशानी ना हो। So we have finished the principles of I/O hardware. Let's start the discussion, talk about the principles of I/O software. Okay, principles of I/O software. First of all, talk about the goals. Goals क्या हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इट शुड बी डिवाइस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म नेमिंग टू डिवाइसेस होनी चाहिए, एरर हैंडलिंग होनी चाहिए, एंड देयर आर फ्यू मोर। लेकिन पहले चलें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको जो टॉपिक आता जा रहा है उसको डिस्कस करते जाते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंस, we do not have to specify the devices when assessing the device. For example, if you want to read the file, अगर आपने रीड करनी है उस फाइल को और उसको डेटा को कॉपी करना है, तो आपको डिवाइस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सिंपली जनाब फाइल सिस्टम के अंदर से क्लिक करें, विंडोज आपने खोली हुई है, फाइल को एक तरफ से क्लिक करें और एक तरफ ड्रैग करते हुए दूसरी डिवाइस के ऊपर ले जाएं, तो डिवाइस को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। लिहाजा आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हार्ड डिस्क से सीडी रोम पे जा रहे हैं, या सीडी रोम से हार्ड डिस्क पे आ रहे हैं, या सीडी रोम से यूएसबी पे जा रहे हैं, या यूएसबी से हार्ड डिस्क पे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सीडी रोम पे राइट करने के लिए आपको स्पेशल टूल्स की जरूरत पेश आती है। सो डिवाइस इंडिपेंडेंट मींस कि आपका जो टॉप लेवल का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका गोल ये होना चाहिए कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करे उसमें तमाम डिवाइसेस को हाइड करे और आपको कहे कि सिर्फ आप फाइल्स के साथ प्ले करें, फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर आप लेके जाएं, चाहे वो विद इन द डिवाइस हो चाहे वो अक्रॉस द डिवाइस हो। इसको हम कहते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म नेमिंग। अब जो नाम रखने अपने डिवाइस का उसका भी एक यूनिफॉर्म वे होना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी कि आपको हर डिवाइस के लिए एक डिफरेंट नेमिंग या डिफरेंट नॉमेनक्लेचर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। सो नेम शुड बी डिपेंडेंट ऑन डिवाइस टाइप, name of device should not be dependent on device type, and name of the device, directory and file should be the same. जिस तरह हम फाइल सिस्टम के अंदर फाइल्स को मेंशन करते हैं, डायरेक्टरी को मेंशन करते हैं, इसी तरह डिवाइस को मेंशन करना चाहिए। और हमने देखा कि यूनिक्स एनवायरनमेंट के अंदर रूट फाइल सिस्टम में, याद है ना आपको, हमने जब पढ़ा था, तो ये आपका रूट है /user/ast/backup. So in Unix a USB stick can be mounted on the top of the directory. आप यहाँ पर USB stick को माउंट करवें, ओके, और बैकअप डिवाइस के तौर पर या इस जगह पे AST के ऊपर आपने USB स्टिक को माउंट कर दिया। तो अब USB स्टिक आपने मेंशन नहीं किया दिस इज अ USB स्टिक, आपने कहा कि माउंट बैकअप, ठीक है, और ये अब आपकी USB का नाम आपने बैकअप रखा हुआ है और आपने इसको माउंट कर दिया AST के अंदर, और यहां से फिर अब आप इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट है विच इज फॉर एग्जांपल मंडे, और आप ये डेटा जो है मंडे का इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। सो आपने कोई स्पेशल नेमिंग, कोई नॉमेनक्लेचर यूज नहीं किया टू हैंडल द USB, बल्कि आपने सिंपल /user/ast/backup/monday एक जो फाइल सिस्टम का जो पाथ है उसको यूज करते हुए हम डिवाइसेस को हैंडल कर सकें, और इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म नेमिंग। ओके, एरर हैंडलिंग। Error handling should be also
by the सिस्टम इटसेल्फ। अब मैं जब कह रहा हूं सिस्टम इटसेल्फ तो थोड़ा सा आपने देखा मैंने रुक के कहा कि सिस्टम इटसेल्फ, बिकॉज हम चाहते ये हैं कि जो एरर हैंडलिंग है वो डीप बरीड हो सिस्टम के अंदर, ये जो सॉफ्टवेयर की जो लेयर्स हैं उसमें बरीड हो। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हार्ड डिस्क, उसकी पोजीशन के ऊपर अगर नहीं जा रहा या हेड के ऊपर कोई डस्ट आ गई है तो मल्टीपल टाइम्स ट्रायल्स होने चाहिए, उसको बार बार रीड करने की कोशिश करें सो डैट कि डस्ट पार्टिकल डेट माइट बी लैंडिंग ऑन टू द हेड वो जो है वो रोटेशन से वो आगे पीछे हो जाए और आप एरर जो है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो हम चाहेंगे कि ये एरर जो है शुड बी हैंडल्ड बाय द लोएस्ट लेवल पे क्या होता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर ही डिवाइस की इस एरर को रिजॉल्व करे। अगर कंट्रोलर डिवाइस की एरर को रिजॉल्व ना कर सके तो फिर उसके ऊपर आए, कंट्रोलर के ऊपर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, वो उसको हैंडल करे। डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो उसके ऊपर फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, और वर्स्ट सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे कि वो आप इंटरेक्टिव यूजर अगर अवेलेबल है उसको आप मैसेज देंगे कि भाई ये सिचुएशन है, बताएं इसको अबॉर्ट करें या कंटिन्यू करें या हम इसको करंट प्रोसेस को एक रीट्राई जो है उसको दी जाए ताकि एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इसको कहते हैं एरर हैंडलिंग। देन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन। दो तरह की ऑप्शंस हो सकती है, एक ब्लॉकिंग और एक नॉन ब्लॉकिंग। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जब किसी डिवाइसेस को हैंडल कर रहे हैं तो उसको एक स्पेशल मैकेनिज्म नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहते हैं कि यूजर को ऐसा नजर आए कि वो हार्ड डिस्क से रीड कर रहा है या कीबोर्ड से रीड कर रहा है या किसी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से रीड कर रहे हैं, वट एवर द डिवाइस कुड बी, इसको अपेरेंट भी एक ही नजर आना चाहिए एंड यूजर के लिए। एंड यूजर के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन चाहिए और दैट एब्स्ट्रैक्शन मींस के हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे हम क्या हाइड करना चाह रहे हैं, ब्लॉकिंग और non-blocking. So operating system needs to make IO operation blocking. For example, program block until data arrives on a read. इसको हम कहते हैं कि ये अच्छा, ये मैंने जो एग्जांपल दी ना, ये मैंने दूसरे ब्लॉक की एग्जांपल दे दी। ये ब्लॉकिंग वो है कि प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। और थोड़ा सा इसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब आप कोई आईओ रिक्वेस्ट यूजर क्रिएट करता है तो दो ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो है वो बेसिकली क्या करता है कि साइमल्टेनियसली आपको रीड राइट फैसिलिटी देता है। तो सिंक्रोनस ब्लॉकिंग वर्सेस एसिंक्रोनस व्हिच इज इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। एक तो ये है कि आप उस डिवाइस से आप उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, प्रोग्राम ब्लॉक until data arrives and read because it is easy to write the blocking options, ठीक है। आपने IO जनरेट किया, ड्राइवर ने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की और प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया, और जनाब वो पूरे का पूरा जो डेटा है डिवाइस से रीड करके प्रोसेस के अंदर एक ब्लॉक की फॉर्म के अंदर वो ये दो डिफरेंट ब्लॉक है। वो ब्लॉक जो है ना वो बफर है, वो बफर के अंदर वो डेटा आ गया। वंस द डेटा इज देयर इन द बफर, तो वो जो ब्लॉक्ड प्रोसेस है, यानी कि वो जो ब्लॉक स्टेट के अंदर गया हुआ है, जो कि रुका हुआ है प्रोसेस, वो जो है दोबारा एक्टिवेट होगा और वो डेटा अपने बफर से रीड करना शुरू कर देगा। दूसरा जो तरीका है वो है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कि आपने डिवाइस को कहा कि आप डेटा रीड करना चाहते हैं, डिवाइस ने डेटा प्रोवाइड किया और आपको इंटरप्ट किया, और जब आपके प्रोसेस को इंटरप्ट किया तो आपने उसके डेटा को उठाया। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। जब हम इसकी थोड़ी सी आगे फर्दर डिटेल में जाएंगे तो मैं इसको और फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इससे जरा कंफ्यूज ना हो। अब ये समझें कि आपके पास ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन या नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ब खुद अपने अंदर जो है छुपाना है, सो डैट के यूजर को ये नहीं पता होना चाहिए कि इंटरप्ट ड्रिवन आईओ हो रही है या ये ब्लॉकिंग वाले प्रोसेस से आईओ परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है बफरिंग। इसको भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बफरिंग के बारे में इतना कहते हैं कि द डेटा रीड फ्रॉम द डिवाइस इज टू बी बफर्ड टू इंश्योर अवॉइड डेटा लॉस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम बस और नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्पीड। क्या मतलब? मतलब ये कि
दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जिस डिवाइस ने आपको डेटा देना है वो तेजी से डेटा दे रहा है। अब अगर देखें तो डिवाइस जो है वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड कहाँ पर है, वो कनेक्टेड है सर्टेनली सिस्टम बस के थ्रू। मैंने भी आपसे कहा था कि वो डायरेक्टली जो इंटरप्ट कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड हो सकती है, यही कहा था ना। लेकिन जब डेटा की रीड राइट की बात आएगी तो आपने देखा कि इंटरप्ट कंट्रोलर भी बस के ऊपर लगा हुआ है। कौन सी बस है? सिस्टम बस है। तो जब डेटा रीड करना है सीपीयू ने तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द बस अवेलेबिलिटी ऑफ द बस। तो मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। एक बात ये हो सकती है कि डिवाइस इज पुटिंग अप द डेटा वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, बस आपको सीपीयू को नहीं मिल पाई, बस एंगेज की हुई है किसी और डीएमए कंट्रोलर ने या किसी और डिवाइस ने, तो ऐसी सूरत में डेटा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट है, डिवाइस जो है बहुत स्लो है और सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीपीयू रीड करने की कोशिश करता है, बस को भी एंगेज करता है, लेकिन डिवाइस आहिस्ता आहिस्ता डेटा जो है वो सीपीयू को देने के लिए बस के ऊपर डाल रही है। तो ये मिसमैच है दोनों की स्पीड का। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? इसके लिए बफर जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज है जिसमें डिवाइस डेटा जो है वो बफर में रखेगा और सीपीयू जो है वो बफर से डेटा पिक करेगा। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। नेक्स्ट इज शेयर्ड वर्सेस डेडिकेटेड डिवाइस एलोकेशन। ये भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए यूजर के लिए, और यूजर को ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं ये शेयर्ड रिसोर्स मांग रहा हूं या मैं कोई डेडिकेटेड रिसोर्स मांग रहा हूं। शेयर्ड रिसोर्स कौन से हैं? आपकी कौन सी डिवाइस है? हार्ड डिस्क। यस, हार्ड डिस्क इज बीइंग शेयर्ड बाय many users, many processes simultaneously, और CPU एक वक्त में एक प्रोसेस को मिलता है। CPU cannot be shared, और अगर multiple CPUs हैं, yes, that can be shared। और another example sharing device की क्या हो सकती है जिसको कि आप शेयर नहीं करना चाहेंगे, डेडिकेटेड भी चाहेंगे, वो है CD-ROM। आप चाहेंगे कि CD-ROM एक वक्त में एक यूजर को एलोकेट हो, या इससे भी अच्छी एग्जांपल है प्रिंटर। अगर प्रिंटर जो है वो आप शेयर करवा देंगे, नॉर्मली शेयर होता है लेकिन बड़े ट्रिक के साथ शेयर होता है, आपको नजर आता है कि प्रिंटर इज बीइंग शेयर्ड, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में जब एक यूजर का डेटा प्रिंट हो रहा होता है तो एक्सक्लूसिव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी यूजर के प्रिंट आउट को फैसिलिटेट कर रहा होता है जिसकी प्रिंटिंग जो है उसने स्टार्ट की है। इसको हम कहते हैं शेयर्ड वर्सेस डेडिकेटेड डिवाइस एलोकेशन शुड बी हैंडल्ड बाय द आईओ सॉफ्टवेयर एक जैसे अंदाज में। अब एवोल्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लाइड को डाला है मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर को देखने के लिए तो आपको समझ में आए कि हमने क्या क्या चीजें देखी थी हार्डवेयर के अंदर। सो मैंने ये एब्रप्टली एक स्लाइड इसमें यहाँ पे इंसर्ट की है कि एवोल्यूशन ऑफ द आईओ फंक्शंस हुआ कैसे। पहले प्रोसेसर मीन सीपीयू, प्रोसेसर डायरेक्टली कंट्रोल्स अ पेरिफेरल डिवाइसेस। स्टार्ट हमने यहां से किया था क्योंकि बीच में कोई इंटरप्ट कंट्रोलर नहीं था और बहुत ज्यादा आईओ कंट्रोलर्स भी नहीं अवेलेबल थे, तो सीपीयू डायरेक्टली हैंडल करता था। फिर क्या आया कि कंट्रोलर ऑफ आईओ मॉड्यूल इज एडेड, आईओ कंट्रोलर्स आ गए और आईओ कंट्रोलर्स ने डिवाइस को हैंडल करना शुरू कर दिया। फिर एवोल्यूशन क्या आई कि सेम कॉन्फ़िगरेशन एज स्टेप नंबर 2 के आईओ कंट्रोलर्स भी आ गए, बट नाउ द इंटरप्ट्स आर एम्प्लॉयड। बल्कि क्या किया कि सीपीयू को आपने कहा कि डू इट वट एवर यू वॉन्ट, वेन एवर द डेटा विल बी रेडी द सीपीयू विल बी इंटरप्टेड। सो आप एक इंटरप्ट ड्रिवन आईओ मैकेनिज्म जो है वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या आई कि अच्छा जो इंटरप्ट ड्रिवन था ना उसमें जब डेटा अवेलेबल होता था कहां पर, कंट्रोलर के बफर में, तो आप सीपीयू को इंटरप्ट करते थे कि भी डेटा मेरे कंट्रोलर के बफर में, इसको पिक कर में, तो सीपीयू जो है सिस्टम बस के थ्रू उस डिवाइस के कंट्रोलर से डेटा पिक करता था और वो मेमोरी के अंदर प्रोवाइड कर दिया करता था। ठीक, लेकिन बाद में आपने क्या किया, आपने कहा कि सीपीयू को भी हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेयर इज माय कर्सर? ओके, ये रहा।
आप लेकर आ गए जनाब डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। अब जो एवोल्यूशन ये हुआ कि सीपीयू जो है वो कोई और अपना काम कर रहा है और डेटा जो है डिवाइस से मेमोरी में विदाउट सीपीयू को इन्वॉल्व किए पहुंचा रहे हैं आप। जब ये डेटा जो है डायरेक्टली सीपीयू को इन्वॉल्व किए बजाय मेमोरी में आ जाता है, तब सीपीयू को इंटरप्ट करके कहते हैं कि जी डेटा जो डिवाइस से आना था वो मेमोरी में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो दैट वाज अ बिग एवोल्यूशन। इसके बाद क्या हुआ? IO module is enhanced to become a separate processor with specialized instruction set and IO। फिर IO module जो है ना वो इतने ज़्यादा enhance हो गए कि उनके अपने इंस्ट्रक्शन सेट से और IO module जो हैं बजाय CPU को इंटरप्ट करने के बड़े इंटेलिजेंट भी डिवाइसेस को जो है वो हैंडल करने लगे। और फाइनली द IO module has a local memory of its own and is in fact a computer in its own right। यानी कि अब IO मॉड्यूल जो है उसके अंदर जो चिप लगी हुई है इंटेलिजेंट, वो बजाते खुद एक प्रोसेसर है और उसकी अपनी लोकल मेमोरी है। सो बहुत सारे काम जो कि CPU को करने थे अब वो इंटेलिजेंट IO कंट्रोलर्स जो हैं वो ये परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपने उसमें अपने हार्डवेयर में खुद से कंप्यूटर हैं, उनकी अपनी मेमोरी है। इसका मतलब वो जो मैंने पिछली बात की थी ना कि एरर हैंडलिंग को बरी आउट करें डीपर इनसाइड के कंट्रोलर लेवल पर ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। सो आई थॉट के IO सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन, हम जो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का ज्वाइंट एवोल्यूशन हुआ है, इसमें कुछ हार्डवेयर के एवोल्यूशंस हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के एवोल्यूशन है। खाली ये DMA कंट्रोलर हार्डवेयर ही नहीं है बल्कि ऑब्वियसली इस DMA कंट्रोलर के लिए सॉफ्टवेयर ने भी प्रोविजन प्रोवाइड की है। लिहाजा दिस वाज एन आइडियल प्लेस टू पुट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर। Okay, let's talk about the type of IO operations। तीन तरीके से आप IO ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोग्राम्ड IO, नंबर 2 इंटरप्ट ड्रिवन IO और नंबर 3 आप गैस करें क्या है? DMA। यस, ये एवोल्यूशन वाली बात है जो मैं अब आपसे कर रहा था। सबसे पहले CPU खुद यूज हो रहा था, फिर इंटरप्ट ड्रिवन आया, फिर DMA आया। तो ये बेसिकली तीन बड़ी कैटेगरीज आपके सामने आ गई। लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टूडेंट्स, एक चीज जो मैं इस स्टेज के ऊपर आपको बताना चाह रहा हूं कि हम बार बार चीजों को डिस्कस करते हैं सर्टेन पैराए के अंदर। आप इससे कंफ्यूज ना हो, पहले आप ये देखें कि हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने इंटरप्ट की बात की जब हम हार्डवेयर की बात कर रहे थे। अब इंटरप्ट की बात करेंगे या जो कर रहे हैं वो हम सॉफ्टवेयर के रेफरेंस से कर रहे हैं। हमने सेकंड चैप्टर में इंटरप्ट की बात की जब हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, क्योंकि वो इंटरप्ट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा था। हमने मेमोरी मैनेजमेंट में इंटरप्ट की बात की क्योंकि मेमोरी में जब इंटरप्ट अकर होता है तो वो डिफरेंट सिनेरियो के अंदर उसको देखना पड़ता है कि पेज फॉल्ट इज एन इंटरप्ट, सेगमेंट फॉल्ट इज एन इंटरप्ट। तो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि एक जो इंटरप्ट का मैकेनिज्म है उसको डिफरेंट आप ये समझे रंग बिरंगी ग्लासेस लगाकर हम उसी सिचुएशन को देख रहे हैं। जब हम प्रोसेस के एस्पेक्ट से इंटरप्ट को देखते हैं तो प्रोसेस के एस्पेक्ट से देखते हैं, जब मेमोरी के एस्पेक्ट से देखते हैं तो मेमोरी के एस्पेक्ट से देखते हैं, और यहां पर प्रिसाइजली डिवाइस IO डिवाइसेस के एस्पेक्ट से हम इंटरप्ट को देख रहे हैं। और यहां पर भी हमने इंटरप्ट के दो जगह से देखा। एक हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ IO हार्डवेयर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में उसको डिस्कस किया था, और अब जो हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ IO सॉफ्टवेयर। तो इतनी लंबी सारी तकरीर करने का मकसद ये है कि आप चीजों को जब पढ़ रहे होंगे तो बराए मेहरबानी उसको उस एस्पेक्ट से देखते रहें, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज होके बैठ जाएंगे सर ने ये क्या किया, इंटरप्ट को बार बार पढ़ाए जा रहे हैं, बार बार पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें कि हर दफा कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट, नई सिचुएशन और नए रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंट्रोड्यूस होते हैं। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू या एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तीन तरह के IO ऑपरेशंस हैं। नंबर 1 प्रोग्राम्ड IO। पहले प्रोग्राम्ड IO की बात कर लेते हैं। द प्रोसेसर इश्यूज एन IO कमांड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस टू एन IO मॉड्यूल। That process then busy waits for the operation to be completed before proceeding further। सिंपल सी बात है कि एक
प्रोसेस है जो आईओ ऑपरेशन कैरी आउट करना चाहता है, तो प्रोसेसर क्या, सीपीयू, उस प्रोसेस के बिहाफ पर उस पर्टिकुलर डिवाइस को इंस्ट्रक्ट करता है। कैसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उसके जो कंट्रोलर के रजिस्टर्स के ऊपर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंट्रोलर के जो रजिस्टर्स हैं उनको लोड करते हैं विद द कमांड, और फिर उसके बाद वो वेट करता रहता है कि ये कंट्रोलर जो है उस डेटा उसको प्रोवाइड कर दे। इसको हमने कहा था बिजी वेटिंग भी, कि वो जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ है, सीपीयू जो है वो वेट कर रहा है, यानी कि वो प्रोसेस वेट कर रहा है, और सीपीयू जो है वो लूप के अंदर चेक कर रहा है कि कब वो डेटा आए बस के ऊपर और मैं रीड आउट करके इस प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइड करूं। इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड आईओ। दूसरा है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या है? द प्रोसेसर इश्यूज एन आईओ कमांड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस, जो काम ऊपर किया था, लेकिन इफ नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेसर continues to execute instruction from the process that issued the IO command। यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, आपने कहा ना, अगर आपको याद होगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट हमने थ्रेडिंग पढ़ी थी, ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या किया था, नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स पढ़ी थी। तो उसमें क्या करते हैं कि जनाब आपने इंस्ट्रक्शन तो दे दी कि जनाब ये आईओ परफॉर्म कर दें, और साथ ही जो सीपीयू है वो दूसरे थ्रेड को, प्रोसेसर जो है वो दूसरे थ्रेड को एलोकेट कर दिया। तो वो हम बात कर रहे हैं कि नॉन ब्लॉकिंग की, कि वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा इन द मीनवाइल जो आपका इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं आईओ की, वो आपके ये डेटा रीड आउट कर रहा है। ठीक। दूसरा है इफ ब्लॉकिंग। अगर ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल आपने की है तो इन दैट केस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इज फ्रॉम द ओएस। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस तो हो गया ब्लॉक। जब प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब है ट्रैप अकर हुआ। जब ट्रैप अकर हुआ तो कंट्रोल कर्नल में चला गया। जब कर्नल के पास कंट्रोल चला गया तो अब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन होगी, कर्नल की इंस्ट्रक्शन होगी, विच विल पुट द करंट प्रोसेस इन ए ब्लॉक स्टेट एंड शेड्यूल अनदर प्रोसेस। आपने देखा कि वो कर्नल क्या करता है कि उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद शेड्यूलर को कंट्रोल दे देता है, और वो जो शेड्यूलर है वो या तो कोई कर्नल का प्रोसेस या हायर प्रायोरिटी प्रोसेस या कोई और यूजर का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। और तीसरा आईओ यूजिंग डीएमए। A DMA module controls the exchange of data between the main memory and an IO module. अब CPU is free. After issuing the command, वही वाला सेंटेंस मुझे यहाँ रिपीट करना चाहिए था, कौन सा? ये वाला भाई। The process issues an IO command on behalf of process. वो कमांड तो इशू करेगा ना वो प्रोसेस के, मुझे चाहिए क्या, करना क्या है। उसके बाद जो डीएमए कंट्रोलर जो है वो टेक ओवर करवेगा और दी विल रीड द डेटा फ्रॉम डिवाइस एंड प्रोवाइड इट इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वंस द डेटा इज अवेलेबल इन द मेमोरी, तो फिर ये उस प्रोसेस को हैंड ओवर कर देगा डेटा और प्रोसेस विल रिज्यूम। और अदरवाइज अगर तो आप यूज कर रहे हैं थ्रेड्स तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो शेड्यूलर माइट एग्जीक्यूट सम अदर प्रोसेस। सो दिस आईओ ऑपरेशन इज कैरिड आउट विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू फर्दर। कमांड देने के बाद बिल्कुल टोटली सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो दरमियान वाला है ना, यहाँ पे वही है कि इंटरप्ट देकर देयर इज अ चांस कि अब वो सीपीयू जो है वो डेटा उठाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरप्ट ड्रिवन है ना, डीएमए नहीं है। और ये डेटा उठाने से मुराद ये है कि कंट्रोलर के बफर से डेटा उठाकर कॉपी करेगा। पहले अभी वो हम बफरिंग पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कॉपी करता है और क्या करता है फर्दर। ठीक है, तो वो उस डेटा को बेसिकली एंड यूजर तक पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ। This programmed IO में this is a process which is a user process, must be running in user space. User wanted to print, आपकी आसानी की एक simple सी example दी आपकी बुक में कि ABCDEFGH का एक string है that has to be printed on a page. पेज के ऊपर, तो ये पेज किसके पर है? प्रिंटर के पास है। तो बेसिकली ये जो यूजर प्रोसेस है that wanted to print
it into the page. और ये हमने इसको स्टेप 1 में डिसाइड किया कि जनाब हमने ये काम करना है. तो फिर क्या होगा, पहले ये जो स्ट्रिंग है वो कॉपी करेंगे आप कर्नल स्पेस के अंदर. कर्नल स्पेस जो है वो जनाब आपका एक एक कैरेक्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम्ड आईओ है ना, तो यहां से डायरेक्ट नहीं जा रहा है ये इसके ऊपर, बल्कि पहले उसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो डेटा जो है यहाँ पे कर्नल के, ये सारा एरिया कर्नल के पास है. तो पहले यहाँ पर हम प्रोग्राम्ड आईओ में कर्नल में कॉपी कर लेते हैं जो हमने डिवाइस को देना होता है, और फिर एक टाइटर लूप के जरिए, टाइटर लूप जहां पे सीपीयू जो है ना बिजी वेटिंग, कैरेक्टर प्रिंट हो गया, चलो नेक्स्ट प्रिंट करो, बी प्रिंट हो गया, नेक्स्ट प्रिंट करो, सी प्रिंट हो गया. नहीं, अब मैं जब कहता हूं ना प्रिंट हो गया, इसके पीछे पूरी साइंस है. वेट करें, कीप ऑन बिजी वेटिंग, सीपीयू जो है वो वेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, ये देखने के लिए कि प्रिंट हुआ या नहीं हुआ. ठीक, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है अब 2 कैरेक्टर प्रिंट हो गए हैं, और पॉइंटर जो है वो थर्ड कैरेक्टर के ऊपर है, जो कि अब यहाँ पर प्रिंट होगा थर्ड कैरेक्टर. तो इसकी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ. स्टेप्स क्या है उसको थोड़ा सा जो मैंने आपको ज़बानी एक्सप्लेन किए थे स्टेप्स, अब यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर मेंशन किए. फर्स्ट द डेटा आर कॉपीड टू द कर्नल, वापस जाएं, दिस डेटा इज कॉपीड इनटू द कर्नल. ठीक होगी बात, ओ सॉरी. उसके बाद देन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंटर्स अ टाइटर लूप आउटपुटिंग अ कैरेक्टर ऑनटू द वन एट अ टाइम ऑन द डिवाइस. ठीक होगी बात. वो वापस चलते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, कर्नल जो है टाइटल लूप के जरिए डेटा जो है वो कॉपी किए जा रहा है उसके ऊपर वन एट अ टाइम. आफ्टर आउटपुटिंग अ कैरेक्टर द सीपीयू कंटिन्यूसली पोज मीन बिजी वेटिंग, चेक किए जा रहा है उसको, उसकी कोई बिट को चेक कर रहा है, रेडी बिट, प्रिंटर कब रेडी होगा टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर. जैसे ही प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंट कर देता है उसका वो एक सिग्नल देता है, और वो सिग्नल एक पिन के ऊपर आता है. पिन का जो सिग्नल है वो लो से हाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल 0 से 1 हो जाता है, और सीपीयू को पता चल जाता है कि प्रिंटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर. तो फिर उसके प्रिंटर के बफर में नेक्स्ट कैरेक्टर कॉपी कर देता है और उसे कहता है इसे प्रिंट करो, और साथ ही फिर वो उसी पिन को दोबारा चेक करना शुरू कर देता है वेदर द प्रिंटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर और नॉट. दिस बिहेवियर इज ऑफन कॉल्ड पोलिंग और बिजी वेटिंग. ठीक, अच्छा जी, दिस इज एन एग्जांपल. अब यहां पर आप देखें कि पी जो है वो कर्नल का बफर है, और ये वाला बफर जो है वो यूजर का बफर है. आप क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं स्टेप 1 के अंदर यूजर प्रोसेस जो बफर है, डेटा जो है दैट हैज टू बी प्रिंटेड ऑन टू द प्रिंटर, उसको वो कर्नल के बफर में कॉपी करता है और बताता है कि कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करने हैं. बजाय इसके वो खुद कंप्यूट करे, यूजर बता देता है कि भाई 20 कैरेक्टर्स हैं या 1 पेज है, वट एवर, उसका काउंट प्रोवाइड कर देता है. उसके बाद ये टाइटल लूप के अंदर लूप ऑन एवरी कैरेक्टर फॉर आई इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू काउंट आई प्लस प्लस वाई प्रिंटर इज रेडी चेक करे जाएगा. अगर प्रिंटर रेडी है तो जनाब प्रिंटर ने इसने करना क्या है, सिर्फ इसको कर्नल के बफर से उठाकर इसको राइट करना है इसके प्रिंटर के ऊपर. ये सॉरी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना. अब आपने यहां से तो कॉपी कर दिया था ना, और कहां पे कि यूजर प्रोसेस से यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में कॉपी कर दिया था. अब कर्नल स्पेस से एक एक करके कैरेक्टर जो है टाइटल लूप व्हेन एवर द प्रिंटर इज रेडी, और जनाब ये यहाँ पर उसको राइट डाउन कर रहा है, उस प्रिंटर के रजिस्टर में लिख रहा है. जब प्रिंटर के रजिस्टर में लिखनेगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा चेक करेगा, अगला कैरेक्टर उठाएगा और फिर चेक करेगा कि आप पिन रेडी हो गई है, रेडी मीन 1 हो गई है वो पिन. जब वो पिन 1 हो गई है अगला कैरेक्टर राइट करेगा, पिन 1 हो गई है अगला कैरेक्टर राइट करेगा, और एंड पे रिटर्न बैक टू द यूजर. ठीक हो गया, आउटपुट 1 कैरेक्टर एट ए टाइम. सो आफ्टर आउटपुटिंग अ कैरेक्टर अ प्रिंटर ऑन प्रिंटर द सीपीयू कंटिन्यूसली पोज द, ये पोलिंग है, यहाँ पे पोलिंग हो रही है. ठीक है, पोज द प्रिंटर टू सी इफ द रेडी टू एक्सेप्ट अनदर वन. ओके, दिस इज कॉल्ड बिजी वेटिंग, और हमें पता है कि इट इज द वेस्टेज ऑफ द सीपीयू टाइम. Okay, there are certain good and certain bad about it. Programmed I/O good क्या है कि it's very simple idea.
and if the CPU has to do nothing, और like मैंने आपको बताया था embedded systems के अंदर CPU ने एक खास activity और एक खास काम करना होता है, अगर तो भाई ऐसी situation है तो it's a very good idea, बजाय इसके कि CPU उधर वेट कर रहा हो और आप यहाँ पे complicated आप IO mechanism लगाएं, intelligent controller लगाएं और ये सारे cost बढ़ा दें. अगर CPU ने सिर्फ एक ही यूजर को सर्व करना है और सर्टन कोडेड एक्टिविटीज ही करनी है एम्बेडेड सिस्टम में जो कोड हुई हुई है, ऐसी सूरत में इट्स अ गुड आइडिया और हम प्रोग्राम्ड आईओ की तरफ ही जाना पसंद करेंगे. माइक्रोवेव ओवन को अगर इंस्ट्रक्शन देनी है माइक्रोवेव की जो चिप है कंट्रोलर ने, तो उसने कुछ और तो करना नहीं है, उसने खाना पकाने के अलावा उसने बर्तन तो धोने नहीं है, वो डिश वॉशर तो है नहीं, उसने आपके कपड़े भी नहीं धोने, उसने सिर्फ खाना ही पकाना है. तो अगर वो इंस्ट्रक्शन देकर फारिग बैठा हुआ है तो साथ साथ बेहतर है कि वो बिजी वेटिंग पे चेक करता रहे कि स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है तो स्टेज 2 पे चला जाए, स्टेज 2 कंप्लीट हो गई है तो स्टेज 3 पे चला जाए, उसको रोटेट करता रहे, उसके रोटेशन की स्पीड को देखता रहे, उसके टेम्परेचर को देखता रहे, उसके और जो बेशुमार इवेंट्स हैं माइक्रोवेव ओवन के, अगर उसने एम्बेडेड सिस्टम ने उसको हैंडल करना है तो इट्स बेटर कि आप प्रोग्राम्ड आईओ करें. बैड क्या है? अगर सीपीयू एक लग्जरी रिसोर्स है और सीपीयू एक पेंटियम एनवायरनमेंट के अंदर सीपीयू है और प्रोवाइडिंग दी सर्विस टू मैनी प्रोसेसेस या मैनी यूजर, तो फिर ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, फिर दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए बैड चॉइस. नेक्स्ट इज इंटरप्ट ड्रिवन आईओ. ठीक, ओके स्टूडेंट, वंस अगेन ओवर गुड ओल्ड फ्रेंड इंटरप्ट जो है फिर आ गया, लेकिन अब इसको देखिए कि अब हम किस सिनेरियो में इंटरप्ट की बात करते हैं. सपोज प्रिंटर वाली एग्जांपल में अगर आपका प्रिंटर इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, एक सेकंड में 100 कैरेक्टर, बहुत फास्ट है ना? नहीं, इतना भी फास्ट नहीं है. अगर कैलकुलेट करें तो एक कैरेक्टर जो है वो 10 मिली सेकेंड के अंदर प्रिंट कर रहा है. 10 मिली सेकेंड यानी कि 10 to the power 3 1000 मिली सेकेंड है. 1000 मिली सेकेंड्स के अंदर अगर आप माइक्रो सेकेंड्स देखें तो एक मिली सेकेंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, और अगर नैनो सेकेंड की बात करें तो 1 मिलियन नैनो सेकेंड जो हैं वो 1 मिली सेकेंड के अंदर होंगे. तो अगर आपका मेमोरी की रीड राइट जो है वो 10 नैनो सेकेंड्स में होती है तो इस दौरान में तो सीपीयू कैन डू वंडर्स. 1 मिली सेकेंड में सीपीयू बहुत सारे काम कर सकता है. सो ऐसी सूरत में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कर सकता है सीपीयू. इट कैन ब्लॉक अ प्रोसेस विच रिक्वेस्टेड एन आईओ एंड शेड्यूल अनदर प्रोसेस. ये जो 10 मिली सेकेंड्स हैं इसमें बड़ी आसानी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी हो सकती है और एक पूरे का पूरा नया प्रोसेस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपनी एग्जीक्यूट कर सकता है. ओके, सो रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोसेस व्हेन आईओ इज डन. अब जब आईओ कंप्लीट होगी, कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, तो फिर प्रिंटर एक इंटरप्ट भेजे सीपीयू को. सीपीयू ने उस प्रोसेस को जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको सेव करवे और फिर नया कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड कर दे. Yet it is very useful to utilize के आप CPU को बजाय busy waiting करने के 10 millisecond के लिए कोई और काम करने दें. So the device will keep interrupting and printing until the end of the string. ठीक होगी बात. सो री-इनिशिएट कॉलिंग प्रोसेस वंस द प्रिंटिंग इज कंप्लीटेड. तो वो वाला प्रोसेस जिसने कहा था प्रिंट करो उसको तो सीपीयू ब्लॉक कर देगा और बार बार इंटरप्ट के जरिए वो उसको नया नया कैरेक्टर, क्योंकि क्यों प्रोसेस ब्लॉक है तो प्रिंट कहां से कर रहा है? यस, हमने अभी पिछली ड्राइंग के अंदर देखा था, स्लाइड में देखा था कि यूजर प्रोसेस से कर्नल प्रोसेस के अंदर हमने स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया था. तो अभी प्रोग्राम्ड आईओ में भी आपका जो डेटा है वो सीपीयू ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ने काबू कर लिया है ताकि वहीं से वो डेटा जो है वो डिवाइस को दे रहा है और यूजर प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया है उसमें अंदर. ठीक, इस तरीके से. सो हमने देखा कि इट विल कीप ऑन इंटरप्टिंग द सीपीयू फॉर एवरी कैरेक्टर. ये थोड़ी सी बैड अबाउट इट. दिस इज द सैंपल. और यहाँ पे अगर हम देखें पार्ट ए में द कोड एग्जीक्यूटेड एट द टाइम द प्रिंट सिस्टम कॉल इज मेड, ये आपका है जहां पे आपने कहा कि वही डेटा दे दिया. कहां से? यूजर प्रोसेस से कॉपी किया कर्नल स्पेस के अंदर. उसके बाद आपने किया एनेबल इंटरप्ट. इंटरप्ट को आपने किया, उसके बाद व्हाइल प्रिंटर इज रेडी
जब तक ये रेडी नहीं, करेक्टर बाय करेक्टर करके डेटा जो है वो उसको प्रोवाइड करते रहे। जब ये सारे का सारा जो काम जो है वाइल ये वाला एक्चुअली जो है जब तक ये जो टेस्ट कर रहा है और इसके बाद ये प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद इंटरप्ट एनेबल, क्योंकि बार बार इंटरप्ट करना है ना उसने, और करेक्टर प्रिंट उसको देने के बाद, प्रिंटर को करेक्टर देने के बाद जब तक वो रेडी नहीं होता शेड्यूलर का कंट्रोल दे देता है, ताकि भाई जो काम करना है करो, जाके शेड्यूलर का काम, अपना टाइम वेस्ट ना करो यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे क्या है, बी में इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर फॉर द प्रिंटर। इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर कहते हैं कि जब तक काउंट 0 ना हो जाए, यहाँ पे काउंट ने बताया था कि भाई 10 कैरेक्टर प्रिंट करने थे, ठीक है ना, और ये कहता है कि क्या काउंट 0 हो गया, उसके लिए अनब्लॉक यूजर प्रोसेस, ठीक, अगर काउंट 0 हो जाए तो यूजर प्रोसेस को जगा दो, अदरवाइज एक एक करके कैरेक्टर जो है प्रिंटर के बफर में रखते जाएं, काउंटर को माइनस करते जाएं और कैरेक्टर आगे बढ़ते जाओ, ABCDEFGHIJKLMNOP, ओके, ये IJ से आगे चले जाओ और काउंटर को डिक्रीमेंट करते जाओ। जब 10 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएं तो उसके बाद एक्नॉलेज इंटरप्ट, ओके, और रिटर्न द कंट्रोल फ्रॉम द इंटरप्ट टू द कॉलिंग प्रोसेस। ठीक होगी बात। तो ये है आपका सैंपल फॉर इंटरप्ट ड्रिवन IO। नेक्स्ट इज DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पॉइंट नंबर 3, पहला प्रोग्राम्ड IO, दूसरा इंटरप्ट ड्रिवन IO, तीसरा DMA। We use DMA controller to send the character to the printer instead of using the CPU. हम वहां पर CPU को यूज कर रहे हैं टू सेंड द कैरेक्टर, कॉपी कर रहा है CPU जो है कंट्रोलर के रजिस्टर में, प्रिंटर का जो कंट्रोलर है उसके रजिस्टर में एक एक कैरेक्टर डाल रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, प्रिंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर DMA कंट्रोलर ये काम करेगा, CPU ये काम नहीं करेगा। सो DMA इज ए प्रोग्राम्ड IO। पहले प्रोग्राम्ड IO में CPU काम कर रहा था, अब प्रोग्राम्ड IO है बट हैंडल्ड नॉट बाय CPU, बाय द DMA कंट्रोलर अब ये काम कर रहा है। And all the work instead of the main CPU. So CPU is only interrupted when the buffer is printed. पहले हर कैरेक्टर के बाद CPU को इंटरप्ट कर रहे थे, अब जब सारे का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो DMA कंट्रोलर बताएगा CPU को जो मुझे असाइनमेंट दी गई थी फाइल प्रिंट करने की, और ये कहां से प्रिंट कर रहा है, उसने ये डेटा मेमोरी में सेव किया हुआ था। DMA कंट्रोलर मैंने आपको बताया था मेमोरी से डेटा उठाकर डिवाइस को प्रोवाइड करता है, या डिवाइस से डेटा उठाकर मेमोरी के अंदर राइट डाउन करता है। तो वो जो कर्नल स्पेस के अंदर आपने कॉपी करेंगे कैरेक्टर, वो एक मेमोरी होगी बेसिकली, वहां से सारे का सारा डेटा जब डिवाइस पे प्रिंट हो जाएगा तो DMA कंट्रोलर विल इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द CPU दैट द वर्क हैज सक्सेसफुली बीन कैरिड आउट। सो DMA इज वर्थ इट। कब इसका फायदा है DMA का, आपको याद होगा पिछली मैंने क्विज में सवाल आपसे क्विज किया था कि DMA का फायदा कब है और जवाब भी दिया था। आई रिपीटिंग इट हियर कि DMA कंट्रोलर कैन ड्राइव द डिवाइस एज फास्ट एज द CPU कुड ड्राइव इट, देन इट इज यूजफुल। और अगर DMA बहुत स्लो काम कर रहा है तो बेहतर है कि CPU ये काम जो है वो खुद ही करवे अपना, ठीक। अगर CPU काम जो है फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कर सकता है तो फिर DMA कंट्रोलर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसी सूरत में इन्वॉल्व करें जब DMA कंट्रोलर एक एफिशिएंट DMA कंट्रोलर हो और वो एफिशिएंटली काम को डिस्पोज ऑफ कर रहा हो। और सेकंड, इफ देयर इज एनफ डेटा टू मेक इट विदाउट वर्थवाइल, यानी कि अगर तो डेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ऐसी सूरत में DMA के आपको फायदा है और आप फिर ऐसी सूरत में DMA को यूज कर सकते हैं। और अगर चंद एक कैरेक्टर हैं तो फिर CPU जो है वो उसको फास्ट हैंडल कर सकता है, डायरेक्ट हैंडल कर सकता है, तो उसको डायरेक्ट हैंडल करवे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू IO ऑपरेशन की, ठीक। और हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने DMA की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर तो एम्बेडेड सिस्टम आपके पास है और CPU ने कुछ और नहीं करना तो फिर DMA की जरूरत नहीं है, CPU को डायरेक्ट खुद ही यूज करवे, ठीक। और उस वक्त में आपको DMA की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जब हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको बताया कि DMA कब वर्थवाइल है, ओके। और ये बात मैंने आपको शुरू में बताई कि उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे। दिस इज द एग्जाम्पल।
यहाँ पर A के अंदर द कोड एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रिंट सिस्टम कॉल इज मेड। प्रिंट सिस्टम कॉल ने क्या करना है कि यूजर बफर से कर्नल बफर में चला जाना है, और कर्नल बफर में जब आप कॉपी द डेटा फ्रॉम यूजर टू द कर्नल स्पेस, फिर उसके बाद आप एक असाइनमेंट दे दें डीएमए कंट्रोलर को कि कैरी आउट दिस टास्क। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टास्क इट विल जस्ट असाइनिंग द टास्क, नॉट कंप्लीटिंग। ये इसको टास्क असाइन करने के बाद शेड्यूलर को कंट्रोल दे देता है कि डू वट एवर यू वांट। ओके, उसके बाद ये क्या है, ये जो बी पार्ट है इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर जो डीएमए यूज करता है, पहले वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे असाइनमेंट मिल गई है, फिर ये जनाब कंट्रोलर अंडरटेक द टास्क खत्म करने के बाद जनाब ये अनब्लॉक करता है उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस को ब्लॉक किया था फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, और उसके बाद जनाब रिटर्न फ्रॉम द इंटरप्ट इज बैक टू द शेड्यूलर को इंटरप्ट। रिटर्न जब आप करेंगे तो कॉल यहां से हुआ था, जहां से कॉल हुआ था वहीं पर कंट्रोल जो है विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस। ओके, नेक्स्ट इज IO software layers, and I will quickly go through it. I may not be able to complete this complete topic, but let's discuss it quite a few, and then I will continue it in the next lecture. IO सॉफ्टवेयर लेयर्स जो हैं वो क्या हैं? सबसे नीचे हमने कहा हार्डवेयर है। ओके, हार्डवेयर के ऊपर है इंटरप्ट हैंडलर्स हैं, उसके ऊपर डिवाइस ड्राइवर है, उसके ऊपर डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद यूजर लेवल IO सॉफ्टवेयर है। हम इसको यहां से यहां पढ़ते हुए जा रहे हैं। हमने IO प्रिंसिपल्स ऑफ IO जो है मैनेजमेंट जो है वो भी देखा, फिर हमने सॉफ्टवेयर जो है उसके हिसाब से हमने बात की कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अब हम IO सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि डीप बरी कैसे करें। ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्शंस हैं, दीज आर दी एब्स्ट्रैक्शंस। ये बिल्कुल बेरिड है, आपको डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए। जो मैंने आपको बताया था, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड पता होनी चाहिए, कितने रजिस्टर्स हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे कमांड देनी है, लेकिन ये आपकी हेडेक नहीं है। इस डिवाइस को हैंडल कैसे करना है, ये काम इंटरप्ट हैंडलर का है। कमांड्स कैसे देनी है, ये सारे का सारा काम डिवाइस ड्राइवर का है। डिवाइस को कैसे हैंडल करना है, ये सारे का सारा काम डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर का है। और यूजर का काम सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना है कि मेरी ये फाइल प्रिंट कर दो इस डिवाइस के ऊपर, दैट्स इट। Okay, so we need to discuss the interrupt handler, device driver, device independent operating system software, and user level IO software. Okay, so let's start with the interrupt handler. नीचे से अब देखें, फिर हम interrupt handler को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन this time हमारा जो interrupt handler है with reference to IO software layer के हवाले से है। The idea behind it, the driver starting the IO blocks until the interrupt happens when IO finishes. थोड़ा वापस जाते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर जो है ये बेसिकली स्पेशलिस्ट है, किसी भी डिवाइस के मिजाज को, इंस्ट्रक्शंस को और उसके परफॉर्मेंस और ऑपरेशन का जो चैंपियन है वो डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर ब्लॉक हो जाता है, मींस कि डिवाइस ड्राइवर जो है इसको इस डिवाइस की तमाम रमजों को समझते हुए इसको इंस्ट्रक्शन दे देता है और खुद फिर वो ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब है इससे ऊपर वाला जो है उनकी वरी नहीं है यहां पर। ओके, सो ड्राइवर स्टार्टिंग द IO इंटरप्ट हैंडलर के थ्रू ब्लॉक्स अंटिल द इंटरप्ट हैपेंस व्हेन द IO इज फिनिश्ड। हैंडलर प्रोसेस द इंटरप्ट, ठीक हो गया। उसके बाद वेक्स अप द ड्राइवर व्हेन द प्रोसेस इज फिनिश्ड। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो ड्राइवर जो है ऊपर अल्टीमेटली ड्राइवर जो है वो इसको मैसेज देगा और फिर ये जनाब यूजर लेवल का जो प्रोसेस है उसको अनब्लॉक करेगा। ओके, wakes up the driver when the process is finished, ये interrupt handler करता है। and drivers are kernel processes with their own। मैंने आपको बताया था कि डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जिसने डिवाइस बनाई है वो डिवाइस ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है, और इस डिवाइस ड्राइवर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं। बाइनरीज हम दोबारा रिकम्पाइल कर लेते हैं उस ड्राइवर को साथ में जाके, या देयर आर सम अदर वेज जिसमें कि वो यूजर स्पेस
स्पेस में भी ड्राइवर, सम ड्राइवर्स जो हैं वो यूजर स्पेस के अंदर भी एग्जीक्यूट होते हैं. सो वंस द ड्राइवर्स आर पार्ट ऑफ द कर्नल, देन दे हैव देयर ओन स्टैक, दे हैव देयर ओन प्रोग्राम काउंटर्स एंड दे हैव देयर ओन स्टेट्स. ओके, interrupt processing details. Let's quickly go through it. First of all, save the registers if not already saved by the interrupt hardware. ये काम interrupt handler कर रहा है. Okay? उसके बाद set up a context for the interrupt service procedure. अब बताएं context का क्या मतलब है यहां पर. किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं. इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने एग्जीक्यूट होना है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या पे हुआ यहां पर? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, टीएलबी, कैश, वो कॉन्टेक्स्ट है हमारा. उसको, ताकि वो जो कुछ उसमें मौजूद है वो आप एक्सीडेंटली या अनवांटेड भी आप उसको रेफर ना करें. सेट अप अ स्टैक फॉर द इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर. अब इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर ने अपना काम करना है, उसके लिए भी आपको एक स्टैक को सेटअप करना है. ये इंटरप्ट हैंडलर उस स्टैक को इनिशियलाइज करके देता है. एक्नॉलेज द इंटरप्ट कंट्रोलर. If there is no centralized interrupt controller, re-enable interrupts. Means कि once the instructions are taken over, means interrupt handler ने instructions दे दी हैं, डिवाइस को instructions pass on कर दी हैं, तो फिर वो क्या करेगा कि वो interrupt को enable कर देगा. अगर तो interrupt controller बीच में है तो interrupt controller को करेगा, और फिर इंटरप्ट कंट्रोलर इंटरप्ट को एनेबल करेगा ताकि कोई फर्दर डिवाइस का जब इंटरप्ट आए तो वो सीपीयू उसकी हैंडल करे और उसकी असाइनमेंट जो है वो इंटरप्ट कंट्रोलर को दी जाए. बट इफ देयर इज नो अदर इंटरप्ट कंट्रोलर, ऐसी सूरत में द इंटरप्ट शुड बी मेड अवेलेबल. आपको इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड करना है, और ये इंटरप्ट सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा? ये इंटरप्ट हैंडलर प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज कॉपी द रजिस्टर्स फ्रॉम वेयर they were saved to the process table. ठीक है, प्रोसेस टेबल के अंदर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी जो उसके अंदर सेव हुई हैं वो उसको वापस प्रोवाइड करेगा, उसको कॉपी करेगा रजिस्टर्स को. कॉपी द रजिस्टर. कौन कौन से रजिस्टर? प्रोग्राम काउंटर, पीएसडब्ल्यू, स्टैक पॉइंटर, ये सारे के सारे प्रोसेस टेबल में सेव होते हैं. ठीक है, हम इसको पढ़ चुके हैं, अब हम इसको जस्ट रिव्यू कर रहे हैं. ओके, रन द इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर. इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर ने अब सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इंटरप्ट हैंडलर जो है इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराएगा. एंड चूज विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट. अब जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस की इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है बजाते खुद वो एक और प्रोसेस बन जाएगा. उस प्रोसेस ने सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन देयर इज ए चांस कि उससे भी ज्यादा हायर प्रायोरिटी का कोई और प्रोसेस मौजूद हो. लिहाजा जो शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि अब जो सीपीयू है वो किसको असाइन किया जाए, क्या इस इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर वाले प्रोसेस को असाइन करें या किसी और को असाइन करें. जिस किसी को भी उसने असाइन करना है उसका एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कॉन्टेक्स्ट जो है दैट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर करेंगे. देन लोड द न्यू प्रोसेस रजिस्टर्स because it has to be executed and then start the new process. So these are the steps. अब ये वो steps हैं जो मिलते जुलते भी हैं और different भी हैं. जो हमने second chapter में interrupt handling के steps देखे थे ये उससे काफी हद तक, क्योंकि sequence तो almost वही है लेकिन explain करने का तरीका थोड़ा सा जो है reference to the context slightly different है. ओके, तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप देखेंगे किस रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस रेफरेंस से आपने इसको रिप्लाई बैक करना है. Okay, next is device driver. I think we should stop here and we would like to discuss the device driver inshallah in the next lecture. So till then हम यहाँ पर अपने सबक को, अपने लेसन को स्टॉप करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे डिवाइस ड्राइवर से. टिल देन खुदा हाफिज, अज़ान के बाद.